बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। सलानपुर के आचड़ा इलाके में शुक्रवार देर रात तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत कार्यालय के पास खड़ी 2 पिकअप वैन को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने हमला कर उनके कार्यकर्ताओं को घायल किया और एक बाइक में आग लगाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। হয়েছিল বলতে আমাদের দুজন রূপনারায়ণপুর থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, তো দুটো 4 চাকা গাড়ি দেখছে না, পেটি পেটি মাল কি সব ঢুকো বার করা করছে। তো সেটা জিজ্ঞেস করে যে কি কি ঢুকাচ্ছ, ওই তোর এই করি ওই করি নানা রকম মুখস্থি করে গাল দেয়। তখন বলে তোকে আমি শুধাইলাম, ভালো করে শুধাইলাম, কি কি বেটে জিজ্ঞেস করতে পারি না, ইয়া হয়ে গেছি ওই হয়ে গেছি নানা রকম দিয়ে পরে গালাগালি করতে করতে মার আমার বাবার চোখে মেরে দিচ্ছে রিভলভার নিয়ে বট করে মেরে দিয়েছে। ও তো অত বুঝতে পারে নাই, ভট করে পেয়েছে, তা করতে ফোন করে আমাদের সকল ছেলেগুলো আসে, দিয়ে পরে দমাদম মায়ের এবার রিভলভারের কাছে কেউ ভিড়ছে নাই। ওই জন্য আমাদের ছেলে এতগুলো আহত, নাহলে দুজনকে মার্ডার করতে কতক্ষণ লাগে? হ্যাঁ, ওরা দুজন ছিল, আর আরও ওদের যখন ঝামেলাটা হয় তখন আরও 5 জন আসে। ওর 5 জন মিলে আর এইদিকে দমাদম শুধু ইটের বৃষ্টি আর বন্দুকের মাঠে মার। একজনের কাছে 5, কে কোন দিকে করবে? এতগুলো ছিল, যদি দুজনকে যদি মারে তো কতক্ষণ মারতে লাগে? কার সঙ্গে মারধরটা কার সঙ্গে হয়েছিল? পল্লব তিয়াড়ি, রনি, এই তারক ধীবর আর নাম হলো আর বিশাল। আরে আমি মাঠে খেয়ে পড়ে আর আমি তো দেখতে পাই না। রাহুল ধীবর, তারপরে কি বেটা কারণ কি 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 নাম ছিল ওরা পেটিতে কি নাম ছিল? রাত 9টার সময় কি ঢোকাচ্ছে সেটা জানতে চাইলাম, যে ফাঁকা ঘরের মধ্যে কি ঢোকাচ্ছে। ওরা বলছে ওটা ওদের পৈতৃক বাড়ি, ওরা বলছে ঠিক আছে পৈতৃক বাড়ি হোক যেই বাড়ি হোক, ওরা বই রাখছিল, স্কুলের বই। আমরা তো দেখিনি, আমরা তো পেটি দেখেছি। আমরা তো জিজ্ঞেস করতে গেছিলাম যে কি আছে, বলে দিলে হয়ে যেত। আজ এত দুর্নীতি করে পরেও চুপচাপ একদম ডাটের মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কই কোনোদিন হামলা তো হয়নি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI।
মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। इस बार प्रशासन ने आसनसोल बाजार के सामने जीटी रोड के फुटपाथों पर वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास एवं नगर मामलों के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने गुरुवार को आसनसोल बाजार क्षेत्र का दौरा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि फुटपाथों पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटाकर आम लोगों के लिए रास्ता खाली कराया जाए। गौरतलब हो कि पिछली सरकार के दौरान कई बार आसनसोल बाजार इलाके से अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल नई सरकार के मंत्री के निर्देश के बाद शुक्रवार की सुबह से राहालेन से हाटन रोड मोड़ तक प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कई बार उत्तेजना का माहौल पैदा हुई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे संभाल लिया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी कई दुकानों को हटाया गया। इससे पूरे आसनसोल बाजार क्षेत्र में तनाव का माहौल देखा गया। कई दुकानदारों में नाराजगी, बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और कई दुकानों पर सामान सहित बुलडोजर चला दिया गया। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि आज कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी उन्हें गुरुवार रात मिली और अगले ही दिन प्रशासन तोड़फोड़ के लिए पहुंच गया। उनका दावा है कि बारिश के मौसम में उन्हें अपनी दुकानें व्यवस्थित तरीके से हटाने या सामान सुरक्षित निकालने का भी पर्याप्त अवसर नहीं मिला, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सार्वजनिक मार्ग और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। दुकान है, रात में एक बाइक अनाउंस हुआ 11 बजे, सुबह में हटाने का मौका मिलेगा ना, पूरा उजाड़ के सब ले गया। क्या करेंगे? बारिश में उन लोग को कम से कम टाइम थोड़ा सा देना चाहिए कि हम लोग को वक्त देगा तब ना कुछ कर पाएंगे। और अंदर का बात नहीं था, ये बाहर का बात था। अभी अंदर भी आ गया, रोड का बगल में बात था, अंदर भी ले ऑफिसर को बोलने से वो अपना एक्शन ले रहा है अलग से। अंदर में इतने ऑफिसर लोग क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर लोग क्लियर बोल रहे हैं नहीं हटेगा तो अरेस्ट कर लेंगे। कोई तरीका है? अरे समय तो बारिश रहा, दिन में अगर 11 बजे रात में बोला तो दिन में टाइम देना चाहिए कि कम से कम चलो शनिवार का तुमको शुक्रवार का टाइम दिया, शनिवार को कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, अचानक ऐसे कर देगा। ऐसे तो माल लूटामारी हो जाएगा। कितना पब्लिक लूट के माल ले गया, इसका जुर्माना कौन देगा? हटाने के लिए कोई बात नहीं, हटाएगा। क्लियर करना चाह रहे सब ठीक है। बहुत आदमी का मोबाइल रखा हुआ है, बहुत आदमी का कस्टमर का मोबाइल है, कपड़ा है। कहाँ से देंगे बोलिए? एक तो पूजा का बात करने का था। हाँ, पूजा का बात था। अभी अचानक ऐसे करके हमला, तो चिंता हो गया एकदम, एक ओपन चिंता हो गई है। तो चिंता हो गई, उसका पब्लिक फायदा उठा लिया। कितना माल, कितना मोबाइल लेके भाग गया, वो कौन देगा? अभी इतना समझ लिया, कस्टमर का सामान रखा होता है। मोहम्मद पप्पू, क्या चीज दुकान था आपका? कपड़ा का। आसनसोल जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र यानी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन राज्य के नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने किया। इस अवसर पर आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी भी उपस्थित रहे। इस केंद्र में कुपोषण से पीड़ित बच्चों को न्यूनतम 14 दिनों तक भर्ती कर विशेष देखभाल और उपचार प्रदान
किया जाएगा। ये सुविधा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस पहल का उद्देश्य कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना और उन्हें उचित पोषण उपलब्ध कराना है। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने केंद्र सरकार की इस योजना को लागू नहीं किया था, लेकिन अब राज्य के सरकारी अस्पताल में ये योजना लागू की जा रही है। আজকে আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে এসেছিলাম এবং এখানে এনআরসি নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, যে বাচ্চারা আন্ডার নারিশড ম্যালনারিশড তাদের বাচ্চাদেরকে সেই বাচ্চাদেরকে আইডেন্টিফাই করে অ্যারাউন্ড 10 জন বাচ্চা একবার করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে মিনিমাম 14 দিন রেখে বাচ্চাটি এবং তার মা তাকে রেখে তাদের নিউট্রিশন লেভেল বাড়ানো হবে। এটা একটি ইউনিক প্রজেক্ট, যেটা এর আগেও কেন্দ্র সরকার বারবার বলেছিলেন, আমাদের রাজ্যে সেগুলো হয়নি। এখন নতুন সরকার আসার পর সেগুলো হচ্ছে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে আমরা করার চেষ্টা করব। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি দেখুন, এই বাচ্চাগুলোই তো আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আর তারা যদি ম্যালনারিশড হয় তাহলে তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং আজকে এখানকার সমস্ত ডাক্তারবাবুরা, আধিকারিক, সুপার সাহেব, ডেপুটি সুপার, সবাই নার্সিং, ফ্যাটার্নিটি এবং যারা ডায়েটিশিয়ান, যারা দেখবেন এই পুরো বিষয়টি, তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা। এত সুন্দর একটি सलानपुर ब्लॉक के आचड़ा इलाके में राजनीतिक झड़प के बाद शुक्रवार सुबह भी तनाव बना रहा। गुरुवार देर रात तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना के कुछ ही घंटों बाद ग्रामीणों के एक समूह ने टायर जलाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में ये आंदोलन किया गया। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम समाप्त कराया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। रात की झड़प में घायल लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। लगातार हो रही झड़पों और सड़क जाम की घटनाओं से इलाके में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की नजर अब पुलिस जांच पर टिकी है। इस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना और क्षेत्र में शांति बहाल करना फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। খবর পাই যে এখানে পথ অবরোধ হয়েছে কালকের এই যে দুষ্কৃতীর দ্বারা হামলার ঘটনা হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে। তাই আমি এখানে এসে লোকালের মানুষদের সাথে কথা বলি এবং প্রশাসনও আসে, প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে আর আমরা পথ অবরোধ উঠিয়ে দিই। তো পথ অবরোধ করেছিল কি কারণটা ওই যে কালকে আমাদের এখানে ছেলেদের উপরে টিএমসি আসে তো দুষ্কৃতীর দ্বারা হামলা হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। সেই পরিস্থিতি তো কতক্ষণ চলেছে পথ অবরোধ? 10 মিনিট। তো এটা কি কোনো দলীয় ঝান্ডা নিয়ে পথ অবরোধ করা হয়েছিল? হ্যাঁ, দলীয় ঝান্ডা নিয়ে হয়েছে। আচ্ছা, বিজেপির কর্মীরাই করেছিল? হ্যাঁ, বিজেপি কর্মী। আচ্ছা, তো কারা হয়েছে বিজেপি কর্মীরা? হ্যাঁ, বিজেপির কিছু কর্মী আহত হয়েছে, হসপিটালাইজ আছে, বাবন দিবর হসপিটালাইজ আছে। আমরা নাম কি? মোহিত দিবর আক্রান্ত হয়েছে, হসপিটালাইজ। আচ্ছা, একজনের চোখের পজিশন খুব খারাপ, ওনার হয়তো চেঞ্জ করতে হবে, লেন্স লাগাতে হবে। তো পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। কি বললো? পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা তদন্ত ঠিক করে করবো। আপনার নাম পরিচয়? প্রিয়ব্রত ভান্ডার। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के मोहिशीला बड़तल्ला बाजार में शुक्रवार को राज्य के नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने एक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेवा केंद्र के माध्यम से मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं और सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सुने। मंत्री को अपने बीच पाकर क्षेत्र के लोगों ने अपनी परेशानियां सीधे बताईं
और इस पहल पर खुशी जताई। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस सेवा केंद्र की शुरुआत लोगों की सेवा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से की गई है। এসছেন, অসুবিধা কি আছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন প্রত্যেকটা বড় অফিসে বিধায়করা বসবেন, সেখান থেকে যা লাগবে আধার কার্ডের ফর্ম, ইনকাম সার্টিফিকেট, যা কিছু সই করার বিষয়, রেসিডেন্সিয়াল, এই যে আমাদের আজকে নতুন অফিস করেছে। যখন থেকে আসানসোলে এসে শুধু মানুষের সাথে জনসংযোগী হচ্ছে, সে মুখোমুখি বলুন, আমাদের এমএলএ যে সেবা কেন্দ্র বলুন, বা এই আজকে মহিশিলার সেবা কেন্দ্র বলুন, সব জায়গাতে মানুষ। আর আমরা টাকা নিই না, সাইন করতে আগে টাকা নেওয়া হতো, আমরা কিন্তু টাকা নিই না, আমরা কিন্তু বিনামূল্যেই করি, কারণ এটা আমাদের কাজ, এটা আমাদের আশীর্বাদ যে আমরা করতে পারছি এই কাজটা, এটা আমরা মনে করি এটা আমাদের আশীর্বাদ। बीजेपी बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।